Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In the last class we discussed about the principles or scientific principles which are given by Frederick Winslow Taylor, and today we are going to discuss about the techniques of scientific management which is given by Frederick Winslow Taylor only. Again, it is very important and I hope you will watch this video with full concentration, and you all are going to make notes from this video. First and very important technique which we have, that is functional foremanship. You can see in the chart we have so many bosses here. You can see instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinary clerk. Then we have speed boss, gang boss, repair boss and inspector. टेलर का मानना था क्योंकि हर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हर काम परफॉर्म नहीं कर सकता. टेलर बिलीव्ड इन द साइंटिफिक अप्रोच बेसिकली, एंड टेलर का मानना ये भी था कि अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड वर्क चाहते हैं तो द पर्सन शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज फॉर दैट. Basically, Taylor concentrated on improving the performance of this role in the factory setup. In fact, he identified a list of qualities of good foreman or supervisor. Foremen should have intelligence, education, tact, judgment, special knowledge, energy, honesty, and good health. Since all these qualities could not be found in a single person, so Taylor proposed 8 specialists. You can see in the chart we have 8 specialists, and all the specialists are connected to the worker or the workman. Each specialist is to be assigned work according to his or her quality. Now, what is in the functional foremanship? Functional foremanship is a technique which aims to improve the quality of supervision at shop floor by putting the workers under 8 specialist foremen. It is an extension of division of work. This line is very important for you all. इस पे CBSE क्वेश्चन भी पुट अप करती है कि एक्सप्लेन द टेक्निक विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. आई होप आप सबको याद होगा कि हमने फ्यूल का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट इज़ डिविजन ऑफ वर्क, जिसमें हर काम को अकॉर्डिंग टू द पर्सन, उसकी एक्सपीरियंसेस, उसकी इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स को देखकर एक बड़ी जॉब को छोटी यूनिट में डिवाइड किया जाता था. Here also, what the tailor is doing, tailor is providing each and every work according to the efficiency and according to the skills of the foreman. One workman, if he has any problem, then the worker or workman will go to the specialized and will take specialized advice for that. आप सबको भी पता है कि जब भी हम डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट के, अगर हम कोई स्पेशलाइज्ड राय लेना चाहते हैं तो हम उसी सब्जेक्ट टीचर के पास जाते हैं जिस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम है. हम कभी भी जो है बिजनेस स्टडीज़ की प्रॉब्लम के लिए केमिस्ट्री या फिज़िक्स के टीचर के पास नहीं जाएंगे. वाई? या फिर फिज़िक्स के लिए आप कोई अकाउंट्स के टीचर के पास नहीं आएंगे. वाई? क्योंकि यू नो कि दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन दैट वर्क. Each and every teacher is specialized in their subject only. So if you want to take any specialized suggestion, problem solving, तो you will go to the specialized person only. तो यहाँ टेलर ने बोला कि हर फैक्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. यू कैन सी हियर दैट इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसके लिए प्लानिंग इंचार्ज को अपॉइंट किया गया है, एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसके लिए प्रोडक्शन इंचार्ज को अपॉइंट किया गया है. हर दोनों डिपार्टमेंट में वी हैव 4 स्पेशलिस्ट. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड, ये हमारे प्लानिंग इंचार्ज हैं, और हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर आएंगे. और ये सभी किसको ऑर्डर करेंगे? वर्कमैन को. इट डिपेंड्स अपॉन द वर्कमैन और द वर्कर कि वो किससे अपनी राय, स्पेशलाइज्ड राय लेना चाहते हैं रिलेटेड टू वर्क. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे किसी भी स्पेशलिस्ट का रोल पूछा जा सकता है. तो
I request you to please note down the important role or their role of different specialists. Like number 1, we have instruction card clerk. The main role of instruction card clerk is to draft instructions for the workers. तो ये क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो आपके वर्कर्स हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस उनको देनी है, कब देनी है, किस तरीके से देनी है, उसको ड्राफ्ट उसका तैयार करते हैं. रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स किस किस स्टेजेस से होकर प्रोडक्शन गुजरेगा और वो क्या उसके स्टेप्स होंगे, उसको रूट क्लर्क डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट. आई होप यू ऑल आर राइटिंग टाइम एंड कॉस्ट शीट. नेक्स्ट वी हैव डिसिप्लिनरियर, दैट मीन्स टू एंश्योर द डिसिप्लिन. तो ये स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है या नहीं, इसको फाइंड आउट करते हैं. तो दे आर 4 स्पेशलिस्ट विच आर अंडर प्लानिंग in charge. Next we have 4 specialists, those who are under the production in charge. In this we have speed boss. Speed boss is responsible for timely and accurate completion of the job. Then we have gang boss. Gang boss, the main role of gang boss is to keep machines and tools ready for the operation by the worker. ताकि किसी भी मशीनरी या टूल्स के लिए वर्कर्स को वेट ना करना पड़े, एग्जैक्ट टाइम पर उनको हर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, इसके लिए गैंग बॉस रिस्पॉन्सिबल होता है. रिपेयर बॉस टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीनरी एंड टूल्स. एंड द इंस्पेक्टर, हियर इंस्पेक्टर का काम खाली इंस्पेक्शन करना नहीं होता, इंस्पेक्शन करना है बट किस चीज़ का इंस्पेक्शन करना है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क. तो आपसे कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है. 1 मार्कर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या इनका रोल है और जो आपको पता होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू टेलर हर कोई इंडिविजुअल पर्सन हर काम में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, इसलिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि इन्होंने हर काम के लिए कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए. तो उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए और वर्कमैन अपनी प्रॉब्लम के लिए 4 प्लानिंग इंचार्ज के पास में से किसी के पास भी जा सकता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड इफ़ ही हैज़ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो चाहे वो स्पीड से रिलेटेड हो या फिर आपकी जो है रिपेयरिंग से रिलेटेड हो या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, अकॉर्डिंग टू द दैट वो स्पेशलाइज्ड सजेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्पेशलाइज्ड वे में ले सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है जो टेलर ने दी है. तो दिस इज़ फंक्शनल फॉर्मैनशिप. हर फंक्शन के लिए एक फॉर्मैन का होना ज़रूरी है, स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड टेक्निक, दैट इज़ मेथड स्टडी. मेथड स्टडी, देखो नाम से ही आप एनालाइज कर सकते हैं कि टेलर क्या कहना चाहते हैं. टेलर कहना चाहते हैं कि मेथड स्टडी का मतलब हर काम को करने का एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है, एक बेस्ट वे होता है फॉर डूइंग समथिंग. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट मीन्स वन बेस्ट वे होगा आपकी तरफ से, आप मैक्सिमम उसको अपना मैक्सिमम दे पाएँ, वो अच्छा सबसे बेस्ट तरीका क्या है. तो मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे और मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब. टेलर डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी. For this purpose, many techniques like process chart, operation research are used. That means whatever work you are doing, you have to follow the best method. Whether you are doing the production, so what will be the best method for that? Whether you are doing the inventory management, so LIFO is best या FIFO is best. That means first in first out या last in first out. Which method you want to adopt? Which method is best for your organization, that you have to analyze. Let's take an example. For designing a car, the assembly line production would require deciding the sequence of operation. That means there should be the proper sequence. Those who are doing the production or those who are involved in that line, they should know the sequence about the production and the place for the man, किसको कहाँ पे रहना है, where should be the place of the machinery and the raw material and all. This all will come in the method study. और basically जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इसी प्रोडक्शन लाइन को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्शन करती हैं. That means they used to analyze the best method or find out the best method for doing a
टास्क. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ स्टूडेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, सही मेथड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, वेदर इट्स अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, एक बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए. यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट. Then only you will able to increase your efficiency. Next we are coming on the next technique, that is motion study. आपने देखा होगा कि कई बार जो है हम किसी भी काम को करने के लिए बैठे हैं तो हम बीच बीच में बहुत बार उठकर कभी किसी रूम में जा रहे हैं, कभी किचन में जा रहे हैं, और पढ़ते समय हम बहुत बार उठते हैं. और कई बार ऐसी मूवमेंट्स भी होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती हैं. फिर पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि अरे आप यहाँ क्यों आए हो, यहाँ ज़रूरत नहीं थी, आप पढ़ रहे थे, यू हैव टू स्टडी विद फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल. फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अरे हाँ, हमारा तो कुछ काम ही नहीं था, मगर हम किसी चीज़ को ढूंढने के लिए या फिर जो है अननेसेसरी मूवमेंट हमारी हुई, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी कम हो गई. इन द सेम वे टेलर का मानना ये है कि वर्कर्स को के भी अननेसेसरी मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको सब टूल उठाने के लिए जा रहे हैं, फिर उसको रखने जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपकी प्लेस से टूल बॉक्स बहुत दूर है, तो आने और जाने का टाइम उसमें ख़राब हो जाता है. उसके बाद जो है आपने अपनी पोजीशंस चेंज की हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है. तो टेलर ने ये ऑब्ज़र्व किया और टेलर ने फाइंड आउट किया कि वर्कर्स की ऐसी बहुत सी मूवमेंट हैं जो ज़रूरी नहीं है, जिन मूवमेंट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है और उस टाइम को प्रोडक्टिव वे में लगाया जा सकता है. तो मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, putting objects, sitting and changing positions, etc., which are undertaking while doing a job. मोशन स्टडी कैसे हेल्प करता है आपका? मोशन स्टडी टू फाइंड आउट द मोशन विच आर प्रोडक्टिव, मोशंस विच आर इंसिडेंटल, जो अचानक से आपको ज़रूरत पड़ी और आपको जाना पड़ा, एंड विच आर अनप्रोडक्टिव. एंड द मेन एम ऑफ डूइंग द मोशन स्टडी इज़ दैट to eliminate unnecessary and wasteful movement so that it takes less time to complete the job effectively and it helps to increase the प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर. अब सेम चीज़ है, अगर आप स्टडी करने बैठे हैं और आपको जो है रजिस्टर नहीं मिल रहा अकाउंटेंसी का, या आपको बिजनेस स्टडीज़ की बुक नहीं मिल रही है, या तो आप क्या कर रहे हैं उस टाइम पर जो आपके पास नोटबुक है आप उसमें काम कर रहे हैं, और आफ्टर दैट यू आर रिपीटिंग दैट टास्क व्हेन यू आर डूइंग इट इन योर मेन रजिस्टर. So whatever things we are doing, we have to identify which movement is important, which movement is necessary and which is unnecessary, and we should eliminate unnecessary movement from our activity to be more productive. I think it is clear, students. Next we are coming on the time study. ये तो हमेशा डिस्कस किया जाता है कि हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है और टाइम को स्टडी किया जाना चाहिए. हर टास्क को परफॉर्म करने से पहले उसका एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाना चाहिए. देन ओनली विल कम टू नो कि क्या आप एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं या नहीं. टाइम स्टडी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब. किसी भी जॉब को प्रॉपरली करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका एक समय निश्चित करें कि आपका वो काम 10 मिनट में, 15 मिनट में कितना. यू शुड नो द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दैट. अगर किसी वर्कर को प्रोडक्ट बनाना है और ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी टाइम सेट कर चुकी है कि ये प्रोडक्ट हाफ एन आवर में बनेगा, 30 मिनट्स में बनेगा, तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम, और वो पूरा साइंटिफिकली उस टाइम को सेट किया जाता है. ऐसे ही इंट्यूशन से सेट नहीं किया जाता है. आप पढ़ चुके हैं कि टेलर सजेस्ट करते हैं कि हमें साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना है. तो बेसिकली टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, ताकि एलिमेंट ऑफ जो आपका टास्क है ये पूरा इसमें किया जाए. एंड द स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स. बहुत सारी रीडिंग्स, दैट मीन्स साइंटिफिक एनालिसिस के बाद आप स्टैंडर्ड उसको सेट करते हैं. नाउ just a minute, we are coming here. Just wait, we are coming.
ओके, नाउ टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस जैसे स्टॉप वॉच वगैरह का आप इस्तेमाल करेंगे। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी इज़ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड। अगेन अगर 10,000 20,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो अगेन आपको देखना पड़ेगा कि 20,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो सुपरवाइज़र कहेंगे कि 1 मंथ में वी हैव टू मेक 20,000 प्रोडक्ट्स, तो हाउ मेनी वर्कर्स वी हैव इफ़ अगर एक प्रोडक्ट 1 घंटे में बन रहा है, वी वांट 20,000 प्रोडक्ट, तो हमें कितने और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दैट यू विल कम टू नो ओनली व्हेन वी आर डूइंग द टाइम study. So it is very important for the organization as well as for the worker also कि you set your time to perform the job. वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फटीग स्टडी। आप सबको पता है, हम आप सभी जो हैं और हर कोई जो है, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि व्हेन यू आर डूइंग द सेम वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम थक जाते हैं, और थकने के बाद जो है आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मॉर्निंग में हम सब एनर्जेटिक होते हैं और जैसे जैसे आफ्टरनून आता रहता है एनर्जी लेवल कम होता रहता है। इन द सेम वे आपने देखा है स्टूडेंट्स के स्कूल में भी आपके 4 पीरियड्स के बाद ब्रेक होता है, या फिर डिफ़िकल्ट पीरियड्स के बाद कुछ म्यूज़िक का या फिर फिज़िकल एजुकेशन का पीरियड रखा जाता है, लाइब्रेरी पीरियड रखा जाता है, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि आप वर्कर्स की थकान का अध्ययन करते रहें। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइज़र कि आपके वर्कर किस काम को कर रहे हैं और कितना जल्दी जल्दी थक जाते हैं। इफ़ यू आर डूइंग द मेंटल एक्सरसाइज, लाइक इन द स्कूल वी ऑल आर डूइंग द मेंटल एक्सरसाइज, द फिजिकल वर्क तो होता नहीं है, मेंटल वर्क होता है। दैट मीन्स हमें एक इंटरवल सफिशेंट होता है जो लंच ब्रेक है। इसके साथ साथ इफ़ यू आर डूइंग द फिजिकल वर्क, दैट मीन्स आपने देखा होगा कि बिल्डिंग बनाने में वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, और उसके लिए जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, तो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर द थोड़े टाइम का इंटरवल भले ही मिले, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इंटरवल्स की। तो फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। दैट मीन्स कितना बड़ा इंटरवल होना चाहिए और कितने समय के बाद होना चाहिए टू इन कंप्लीटिंग द टास्क। An individual is bound to get tired physically and mentally while working for a long period. Rest intervals help to regain stamina to work with the same energy to increase efficiency and productivity. आपने भी देखा है कई बार आप 4-5 पीरियड लगातार अगर पढ़ रहे हैं तो थकान हो जाती है ना। कई बार आप टीचर को बोलते भी हैं कि नहीं आज हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, या आज जो है कुछ और एक्टिविटी फॉर्म में आप इसको करवा दीजिए। क्यों, वाई? कई बार थकान महसूस होती है, तो उस एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए टीचर क्या करते हैं, आपको कई बार कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करवाते हैं। फटीग स्टडी सजेस्ट दैट द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनस्टेबल वर्क, लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग वर्कर्स, बैड वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा कॉज फटीग अमंग वर्कर्स। बहुत सारे कारण हो सकते हैं थकान के, या तो आप बहुत समय से काम कर रहे हैं या फिर आपकी पसंद का काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है तो आप उसे लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, मगर अगर आपको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो आपको वो उसमें थकान आपको जल्दी होती है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, अगर आप जो है अगर वर्कर मैनेजर को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो या उस मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानना चाहते हैं, तो भी जो काम हम करना नहीं चाहते वो कर रहे हैं, तो उससे हमें थकान ज़्यादा होती है। अब आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं लेकिन उस दौरान जो है आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है, तो ऑब्वियसली आपको क्रिकेट में कम थकान होगी, आपको पढ़ने में ज़्यादा थकान होगी। तो फटीग स्टडी बहुत सारे कारण से हो सकती है, बट द मेन थिंग क्या है, क्यों दी जाती है फटीग स्टडी को, ताकि आपको पता चल सके आपके वर्कर्स को कितने टाइम बाद कितने रेस्ट इंटरवल्स की ज़रूरत है, क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए रेस्ट इंटरवल्स का, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, और कितनी जल्दी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ताकि आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी बनी रहे। We are coming on the next one, that is standardization and simplification. इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, very important from your examination point of view. Standardization means setting standard for each business activity. Setting standards ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, whether you are using standardized raw material या standardized machineries, standardized method of production and standardized working conditions, any standard, but organization should maintain some standards for their work. These standards are the benchmarks which business must follow. अगर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं
तो यू हैव टू वर्क ऑन दोज स्टैंडर्ड्स ओनली, आप उससे हट नहीं सकते हैं। दैट मीन्स अगर बाटा कंपनी है या लिबर्टी कंपनी है, उन सभी के प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं, किसी भी आप जो है फ्रेंचाइजी से लेंगे सबके प्रोडक्ट्स बाय, बिकॉज दे ऑल आर यूजिंग, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन होता है क्योंकि सेम मशीनरी, सेम प्रोडक्शन का, सेम मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का? सबसे पहले तो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर जगह हर प्रोडक्ट एक जैसा हो, अलग अलग ना हो। सेकंड, अपनी एक एक्सीलेंस और एक क्वालिटी तो जो आपको अलग करती है फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या फिर प्लानिंग से रिलेटेड हो या फिर आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, टेक्निक से रिलेटेड, हर काम में आप यूनिक कैसे हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। एंड द सेकेंड थिंग, सम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी established for the men and the machinery. It is very important for the organization कि आप standardized method का इस्तेमाल करें। It can be standardized raw material, standardized time, standardized production, standardized machineries, anything, but you should follow the standardization और जो scientifically approach को रखते हुए बनाना चाहिए standards को, और उस पर अमल करना चाहिए। Next we have the simplification. Simplification means to eliminate superfluous variety, size, dimensions and variety of products. If we have 10 products in our product line, but we have only 7 products which are profitable, 3 products are not profitable, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 3 प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन अगेन उन 3 प्रोडक्ट्स के लिए भी आप लेबर जो है उसमें आपके इन्वॉल्व की है, रॉ मटेरियल है, मशीनरीज हैं। दैट मीन्स इफ़ दोज 3 प्रोडक्ट्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट डूइंग एनी या अर्निंग एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट, बट you are again investing money on those 3 products, that is useless. Simplification of task means eliminate those products which are not as per the profitable margin. तो अगेन इट लीड्स टू, अगर आप उसमें पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 प्रोडक्ट्स में, या तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएं, और अगर नहीं आपको लगता है तो वहाँ पर इन्वेस्ट ना करते हुए उन 7 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए और मिनिमाइज़ करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट लाइन को, ताकि आप अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें, आप ओवरबर्डन्ड ना हो। दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़. इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, increase production and lower cost of production. It is very very important. If you are writing this technique, so you have to write down both definition, standardization as well as the simplification of work. One more thing I want to discuss with you, that is कभी कभी केस स्टडी खाली स्टैंडर्डाइजेशन या सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पर आती है. अगर सिंप्लीफिकेशन पूछा गया है और उसमें आप स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ लिख देते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग. या स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल दिया है, आप उसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन लिख देते हैं, अगेन दैट विल बी रॉन्ग. तो you have to do this concept separately also and in the combination also. It is very very important from your examination point of view. Now the last technique, that is differential piece wage system. Differential piece wage, that means different wage system इस्तेमाल करना. टेलर कहते हैं, अब आप कहेंगे कि फ्यूल, तो ये बोलते हैं कि सबको, दोज हु आर वर्किंग ऑन द सेम लेवल विद सेम एक्सपीरियंस, विद सेम वर्क विद सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स उनको सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. बट हियर इफ़ यू वांट टू मोटिवेट द वर्कर्स, बस वो था मैनेजरियल लेवल के लिए, यहाँ पर है ऑपरेशनल लेवल के लिए. आप सबको पता है कि वर्कर्स के लिए या ऑपरेशनल लेवल और वर्कर्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. तो हियर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वर्कर्स को फाइनेंशियली मोटिवेट करें. तो डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम इज़ द बेस्ट मोटिवेटर टेक्निक. अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द बेस्ट मोटिवेटर टेक्निक. तो दैट इज़ द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. अब आप कहेंगे कि ये आपको टेक्निक आपको मोटिवेट कैसे करती है. टेलर का मानना है कि आप ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दोज हु आर एफिशिएंट वर्कर एंड दोज हु आर इनएफिशिएंट वर्कर, उनके वेजेस डिफ़र होने चाहिए. उनका मानना है, ही वांटेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर बेसिकली
and he introduced different rate of wage payment for those who performed above standards and for those who performed below standards. उनका मानना है कि जो स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको अच्छा वेज मिलना चाहिए और जो स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंपैरेटिवली कम मिलना चाहिए, ताकि उनमें मोटिवेशन आए कि हमें भी अच्छा करना है ताकि हमें ज़्यादा वेजेस मिल सके. He proposed that to achieve maximum productivity of worker, it is important that efficiency is recognized in terms of appreciation and rewards. Taylor introduced different rate of wage payment for those who performed above standard and those who performed below standard. So those who are below standard, they will definitely work better to be or to come in the efficient category for the wages. So it is the best motivator technique which is given by the Taylor. तो स्टूडेंट्स वी हैव डन 7 टेक्निक्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू टू मेक प्रॉपर नोट्स फॉर दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.